Hello, welcome to the Khan Life Studies. Today we will discuss the grounds of divorce available under Hindu Marriage Act. Under the Hindu Marriage Act, Section 13(1) provides the grounds for the divorce among Hindus. Number 1, adultery. Second, cruelty. Third, desertion. Fourth, conversion. Fifth, unsoundness of mind. Sixth, incurable form of leprosy. Venereal disease, renouncing the word, and not heard to be alive for 7 years. These are the grounds available to either parties of a marriage. Number 1 ground is adultery. The Act says that any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this Act, may, on a petition presented by either the husband or a wife, be dissolved by decree of divorce on the ground that the either party, number 1, has, after solemnization of the marriage, voluntarily sexual intercourse with any person other than his or her spouse. यहाँ ये क्या कहा गया है एडल्ट्री के बारे में कि विवाह के पश्चात विवाह के पक्षकारों में से किसी एक पक्ष के द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपने पति या पत्नी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स का कार्य किया गया, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्री. एडल्ट्री को जो मैट्रिमोनियल जूरिस्प्रूडेंस वो इस तरह डिफाइन करती है, एडल्ट्री इन मैट्रिमोनियल जूरिस्प्रूडेंस इज वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन मैरिड पर्सन and a person of opposite sex and a person of opposite sex, the two person not being married. यानी एक पक्ष जो विवाहित है या विवाहित है उसने विपरीत सेक्स के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है जिससे कि वो विवाहित नहीं है, तो दिस एक्ट इज कॉल्ड इन ज्यूरिस्प्रूडेंस एडल्ट्री. इन 1976 अमेंडमेंट में ये शब्द जोड़े गए कि हैविंग वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस, यानी स्वेच्छापूर्वक उसने ऐसा कृत्य किया हो. इसके बारे में कहा गया है कि द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी वॉलंटरी. ए मैन और वुमेन फोर्स्ड or fraudulently induced into the situation would not be guilty. Also, the parties concerned must be capable of giving consent to the act and not be incapable by reason of their age or mental health. तो क्लियर हो जाता है कि ये जो एक्ट है ये स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए. The party who is involved in this act should not be fraudulently induced, कपट पूर्वक उसे उत्प्रेरित ना किया गया हो कि वो ऐसा कार्य करे. और दूसरी बात यह है कि जो पक्षकार सहमति देने के स्थिति में हो उस पर ये लागू होगा. He must be capable of giving consent to the act. ऐसा ना हो कि वो by the reason of age और by mental health वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग ऑफ कंसेंट. तो वॉलंटरी का मतलब जो वॉलंटरी एक्ट है दिस शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट एक्ट, शुड नॉट the person should not be
fraudulently induced into the situation. एक सवाल इसमें और उठता है कि whether there is any provision which provides for the adulterer as a co-respondent or not. हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बट द इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 मेक्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर ज्वाइंडर ऑफ adulterer as a co-respondent, but there is no such provision under the Hindu Marriage Act. But if a party, petitioner, joins the adulterer as a co-respondent, then court may take into consideration, उस पर विचार करेगी और इस आधार पर उसका नाम स्ट्राइक आउट नहीं किया जाएगा कि कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 10 इस पर जैसे लागू नहीं होता। लेकिन इफ कोर्ट थिंक्स कि ही इज और शी इज ए नेसेसरी पार्टी, then he will allow the petition. The adulterer may be added as a co-respondent, although there is no provision in the Hindu Marriage Act. So this is the very easy कि first point क्या है, any party to the marriage was involved in the act of adultery. This is one of the grounds for a decree of divorce. Second आता है, और third, cruelty and desertion. These are two points which are asked in the papers. What is cruelty? Cruelty is not defined in the Hindu Marriage Act. Cruelty क्या है, इसकी definition क्यों नहीं आई? Because what is considered as a cruelty today was not constituted a few decades back, and acts which may not constitute cruelty today might be regarded after a few years. यानी वो कृत्य जो पहले, the act which cannot be considered as a cruelty today, which is not considered as a cruelty today, may have considered a decades before as a cruelty. Vice versa, the act which is considered today as a cruelty may not be considered after some years as a cruelty. Therefore, the definition of cruelty is not given in the Hindu Marriage Act. The cruelty has defined in Indian Penal Code, but which is not applicable in the Hindu Marriage Act. The change in the attitude, there has been a change in the attitude of the courts while deciding the acts to be as cruelty. Gurudev Kaur और सरवण सिंह 1959 पंजाब का केस है। The court decided cruelty has to be defined with regard to social condition as they exist in the present day, and not according to the rigid tenets of the Manu and other lawgivers of bygone ages. यानी पूर्व ओल्ड हिंदू लॉ में, मनु स्मृति में जो एक्ट क्रूएल्टी बताए गए हैं उसे कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। कोर्ट क्या कंसीडर करेगी? द सोशल कंडीशन एज दे एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट, यानी वो उस समय जो सोशल कंडीशन प्रिवेल कर रही थी उसमें वो एक्ट क्रूएल्टी है कि नहीं, कोर्ट हैज़ टू कंसीडर ऑन दिस पॉइंट ओनली।
आगे देखिए क्रूरल्टी के बारे में, व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट क्रूरल्टी। क्रूरल्टी कॉन्स्टिट्यूट करने क्या करना पड़ेगा, क्या देखना है कोर्ट को? द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीज, देयर मेंटल एंड फिजिकल कंडीशंस। किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्ति रहता है, उसकी कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ कौन से रीति रिवाज प्रिवेल करते हैं, इन सब पर कोर्ट कंसीडर करेगी कि वो जो एक्ट कंप्लेंट है, जिसका परिवाद किया जा रहा है, वो क्रूरल्टी की परिभाषा में आएगा कि नहीं। एंड ये भी नोट कर लिए, ए क्रूरल्टी मे बी फिजिकल और मेंटल, इट मे बी इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। यानी एक एक्ट जो है किसी इंटेंशन के साथ हो सकता है और या बिना आशय के कोई कृत्य हो सकता है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द petitioner टू प्रूव दैट इट इज हार्मफुल टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। यह साबित करना अब आवश्यक नहीं है कि याची को, पिटिशनर को से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो विपक्षी के साथ, रेस्पोंडेंट के साथ रहे, क्योंकि उसका कृत्य जो है वो क्रूरल्टी की परिभाषा में आता है। उसके जीवन को, उसके शरीर को, उसके स्वास्थ्य को उससे खतरा है। ओनली पिटिशनर हैज टू प्रूव्ड दैट द अपोजिट पार्टी हैज बीन इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्रूरल्टी। अब क्रूरल्टी में चूंकि इट इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर वी शुड सपोर्ट आवर आंसर विथ सम केस लॉज। एक दो केस लॉ है पुराने, उसको देख लेते हैं। सत्या वर्सेस श्री राम, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का 1983 का केस है। ए वाइफ गॉट हर प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ट्वाइस अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर हस्बैंड। पत्नी ने अपनी प्रेगनेंसी 2 बार टर्मिनेट करा ली, अपना गर्भपात करा लिया बिना पति की सहमति के, बिना पति की इच्छा के। द कोर्ट हेल्ड दैट द वाइफ्स कंडक्ट अमाउंटेड टू क्रूरल्टी। इसी तरह देखिए सुमन कपूर और सुधीर कपूर, इट इज ए केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट AIR 2009, सुप्रीम कोर्ट पेज 589, 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या था? ए हस्बैंड sought divorce on the ground that his wife, who has a career oriented lady, got her pregnancy terminated 3 times because she did not want a motherhood। यानी कैरियर बेस्ड वोमेन है, नौकरी करती है, उसका अच्छा कैरियर है, वो आगे जाने की इच्छा रखती है, और उसने इसलिए वो मदरहुड, माँ नहीं बनना चाहती थी, और अपनी प्रेगनेंसी को उसने 3 टाइम अगेन द विशेज एंड ऑफ द हस्बैंड एंड हिज पेरेंट्स, उसने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा लिया। दिस एक्ट अमाउंटेड ए क्रूरल्टी। इसके बाद देखिए डिमांड ऑफ डाउरी। डिमांड ऑफ डाउरी, वेदर इट अमाउंट्स ए क्रूरल्टी। इन शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, AIR 1988, सुप्रीम कोर्ट पेज 121, 1988 सुप्रीम कोर्ट पेज 121। इसने सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड कर दिया है दैट द डाउरी डिमांड पर सी कॉन्स्टिट्यूट्स क्रूरल्टी, गिविंग टू द वाइफ ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। डिमांड ऑफ डाउरी जो है वाइफ के लिए एक बहुत ही रियल ग्राउंड है, माना जाएगा। इट इज अ परसी ग्राउंड फॉर ए डाइवोर्स। दिस ग्राउंड इज अवेलेबल टू द वाइफ। तो डिमांड ऑफ डाउरी, इट इज परसी ए ग्राउंड फॉर ए डाइवोर्स इटसेल्फ। अदर एक्ट में क्रूरल्टी के बारे में दिया गया है।
हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविज़न क्या है? ट्रीटेड पिटिशनर विद क्रूरटी ऑफ द मैरिज। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की सेक्शन 27 में दिया गया है, द ग्राउंड ट्रीटेड पिटिशनर विद क्रूरटी आफ्टर मैरिज। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में दिया गया है, ट्रीटेड द पिटिशनर विद सच क्रूरटी एज टू कॉज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म और इंजरी। ये इंडियन डाइवोर्स एक्ट का प्रोविज़न अब हिंदू मैरिज पर लागू नहीं होता। इसी तरह द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जो महिलाओं को उपलब्ध हैं फॉर तलाक। द कंडीशंस एक्सप्लेन्ड विच वुड कॉन्स्टिट्यूट क्रूरटी टू वाइफ। इसी तरह क्रूरटी के बारे में आईपीसी में दिया गया है, हमने आपको बताया था सेक्शन 498A। 498A में एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, व्हाट इज क्रूरटी? द विलफुल कंडक्ट ऑफ द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। यहाँ पर रिलेटिव्स को भी जोड़ दिया गया है, विच इज सच नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू सुसाइड। यानी पति या उसके घर रिश्तेदारों का ऐसा व्यवहार जो कि पत्नी को सुसाइड करने पर उकसाता है और कॉजेज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ। हियर ओनली हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स आर लायबल। तो ये क्रूरटी की ये कंडक्ट जो है यहाँ पर इंडियन पेनल कोड की धारा 498A में डिफाइन किया गया है कि कौन से एक्ट क्रूरटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अंडर द आईपीसी। तो क्रूरटी के बारे में इतनी बातें जानने के बाद कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जो माने जाएंगे कि ये क्रूरटी की परिभाषा में आते हैं। जैसे एक केस हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट का, ज्योतिष चंद मीरा। इसमें हुआ क्या था कि हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में रहते थे, बट हस्बैंड्स पार्ट टुवर्ड्स हिज वाइफ विद होम ही लिव्ड लाइक ए स्ट्रेंजर अंडर द सेम रूफ। एक अजनबी की तरह रहते थे। ये कहा गया इट इज़ ए क्रूरटी। ऐसा कहा गया इट इज़ ए मेंटल क्रूरटी, इट टॉर्चर्स द वाइफ। इसके बाद एग्जाम्पल देखें, जैसे फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री। एक पार्टी दूसरी एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाती है, डिमांड ऑफ डाउरी, रिफ्यूज़ल टू हैव मैरिटल इंटरकोर्स और रिफ्यूज़ल टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे ना पैदा करना, इट इज़ अ क्रूरटी। इम्पोर्टेंसी ऑफ द अदर पार्टी और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। वैसे आप जानते हैं कि 6 महीने के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 112 ये कहती है कि 6 महीने, विवाह के 6 महीने के अंदर यदि कोई संतान पैदा होगी तो अवैध होगी, इलेजिटिमेट होगी। willful interference by one spouse and ill treatment, hurling of insults at the husband and his parents, गाली देना, पति को गाली देना, उसके परिवार वालों को गाली देना, these are all the grounds of these are all constitutes, ये गठित करते हैं, ये क्रूरटी को गठित करते हैं और ये विवाह विच्छेद यानी तलाक का ये एक आधार है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रूरटी। लेकिन क्रूरटी के साथ साथ आपको ये कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे सेक्शन 23। सेक्शन 23 जो है कुछ बार्स, कुछ अवरोध उत्पन्न करता है डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करने में। नंबर 1, द अदर पार्टी द पिटिशनर, कोर्ट ये देखेगी द पिटिशनर इफ कंडोन द एक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट और नॉट।
If the petitioner condones the act of the respondent, then the court may refuse to give a decree of divorce. दूसरा है delay in filing the petition, अत्यधिक देरी करना। इन एक्ट के बावजूद यदि याची ने अत्यधिक विलंब के साथ ये याचिका दाखिल की गई है, ये माना जाएगा कि उसने उसे कंडोन कर दिया है और उसकी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं रहेगी। तो साथ साथ में आप सेक्शन 23 ज़रूर देखिएगा, व्हाट आर द बार्स इन गिविंग रिलीफ टू द पिटिशनर। सेकंड जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो है द डिजर्शन, अभित्याग, अभित्यजन। अभित्याग कैसे कहते हैं? किसी एक विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्ष को का त्याग कर देना। त्याग कर देना क्या है? विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती ही में इसको डिसाइड किया गया था कि इट हेल्ड दैट इफ ए स्पाउस अबंडन्स द अदर इन ए स्टेट ऑफ टेम्पोररी पैशन, फॉर एग्जाम्पल anger, without intending permanently to cease cohabitation, it will not amount to desertion. डिजर्शन के लिए क्या आवश्यक कहा गया? पहली बात यह कही गई कि गुस्से में किसी अन्य कारण के अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को छोड़ देता है, परंतु उसका आशय, द इंटेंशन जो है परमानेंटली कोहेबिटेशन को एंड करना नहीं है, तो दिस एक्ट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द डिजर्शन। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर द ऑफेंस ऑफ द डिजर्शन, सो फॉर द डिजर्टिंग स्पाउस इज कंसर्न्ड, जो व्यक्ति छोड़ रहा है, डिजर्ट कर रहा है, उसके लिए क्या आवश्यक है? टू कंडीशन मस्ट बी देयर। नंबर 1, द फैक्टम ऑफ डिजर्शन, the intention to bring a cohabitation permanently to an end। ये दो पॉइंट, द फैक्ट ऑफ डिजर्शन एंड दूसरा है द इंटेंशन। एक तो फैक्ट ऑफ सेपरेशन है और दूसरा है जो छोड़ देना। एक तो पहला पॉइंट है फैक्ट, ये तथ्य कि हाँ एक पक्ष ने दूसरे का त्याग कर रखा है, लेकिन दूसरा पॉइंट देखा जाएगा कि क्या ये त्याग साशय था, इंटेंडेड था, और इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इंटेंशन टू ब्रिंग कोहेबिटेशन परमानेंटली टू एन एंड। इसे कहते हैं एनिमस डिजर्डेंडी। तो सेकंड पॉइंट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट, मस्ट को एग्जिस्ट the intention to bring the cohabitation permanently to an end। अब थर्ड पॉइंट इसका ये है, the both the elements should continue during entire statutory period of 2 years। इन ये डिजर्शन, ये जो अलगाव है, ये लगातार, ये दोनों पॉइंट 2 साल तक बने रहने चाहिए। द अबव 2 points मस्ट को एग्जिस्ट फॉर कॉन्टिन्यूअस 2 years। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके साथ स्टैट्यूटरी पीरियड है, डिजर्शन मस्ट बी फॉर 2 years। अब आगे इसी में दिया गया है कि दूसरी पार्टी के क्या ग्राउंड होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, डिजर्शन मस्ट बी विदाउट रिजनेबल कॉज। इन ये जो डिजर्शन है, तो द डिजर्टिंग पार्टी मस्ट हैव सच रिजनेबल कॉज। इफ ही और शी हैज सच ए रिजनेबल कॉज टू डिजर्ट द अदर पार्टी, अगर उसके पास कोई युक्त आधार है उसे त्याग करने का, दूसरे पक्ष को छोड़ देने का, यदि उसके पास युक्त आधार है, तो ये ग्राउंड डिजर्शन जो है, ये जो है डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए? विदाउट रीजनेबल कॉज,
दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है विदाउट द कंसेंट एंड अगेंस्ट द विश ऑफ द पिटिशनर। उसने जो अभित्यगन किया है यो याचिका करता पिटिशनर की सहमति विदाउट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर होना चाहिए एंड इट मस्ट बी अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पिटिशनर, उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसकी सहमति के बिना हो, तब ये ग्राउंड होगा। तीसरी पॉइंट कही गई है द विलफुल नेग्लेक्ट, एक पक्ष का दूसरे पक्ष को जानबूझ करके और उपेक्षा करना, जानबूझ करके विलफुल नेग्लेक्ट करना। ये एक्सप्लेनेशन इसके साथ जोड़ेंगे तो ये डेफिनेशन बनेगी डिजर्शन की। और डिजर्शन इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन क्या होगा कि ए पार्टी हैज बीन फोर्स्ड टू लीव द हाउस, a party has been forced by the other party to leave the house, to desert the petitioner। तो यदि याचिकाकर्ता का ही कंडक्ट ऐसा था जिसके कारण विपक्षी ने उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो डिजर्शन क्रिएट नहीं करेगा। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिजर्शन। यहां पर यह देखा जाएगा कि ये याचिका अपने ही कृत्यों का लाभ नहीं उठा सकती है। डिजर्शन में कई केस ला भी हैं। मेनली केस ला था द बिपिन चंद्र प्रभावती, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इसमें बता दिया है। In fact, the fact and the NMS should continue during entire period of 2 years। डिजर्शन पर अन्य कोई केस ला अगर है तो उसको भी देखते हैं। मेन केस ला इसका यही है, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती। इसमें सारी गाइडलाइंस में डिजर्शन के लिए दी गई हैं। इसके अलावा डिजर्शन के बारे में ज्योतिष चंद मीरा का जो केस है वो भी इम्पॉर्टेंट केस है, जिसमें कहा गया है कि इट इज़ ए केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन। मेनली सारी रूलिंग जो बेस है वो ज्योतिष चंद मीरा पर हैं। तो ज्योतिष चंद मीरा को डिटेल देख लीजिएगा। इसमें जितनी गाइडलाइन है डिजर्शन की उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। व्हाट आर द गाइडलाइंस अबाउट द डिजर्शन। ये डिजर्शन का अपराध ये कृत्य खत्म कैसे माना जाएगा। Desertion may come to an end by the resumption of cohabitation by mutual consent, complete reconciliation। पार्टीज में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, सुलह समझौता हो जाए और वो एक साथ रहने लगे तो डिजर्शन का एक्ट समाप्त हो जाएगा। और व्हेन द सेपरेशन बिकम्स कंसेंसुअल, यानी जहाँ पति पत्नी अलग अपनी सहमति से रह रहे हैं तो डिजर्शन नहीं माना जाएगा। जेन्युइन ऑफर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, सुलह करने के लिए इंटेंशन टू रिटर्न की बात अगर की जाती है, अगर ये जेन्युइन ऑफर किया गया था तो ये भी जो है इससे भी डिजर्शन का ये एक्ट जो है समाप्त माना जाएगा। तो डिजर्शन के जो फैक्ट दिए गए हैं कि डिजर्शन क्या है। डिजर्शन एज डिस्क्राइब्ड इज अ परमानेंट फॉरसेकिंग और abandoning of one spouse by the other without any reasonable cause, without the other's consents or against the wishes of the such party, and includes
विलफुल नेगलेक्ट। अब ये सेक्शन 13 और उसका एक्सप्लेनेशन को जोड़ करके इन्होंने डिफाइन कर दिया कि अब डिजर्शन क्या है। कुल मिला करके कितनी बातें इसमें आ गई। परमानेंट abandonment of one spouse by the other, पहला बात abandonment है और स्टैट्यूटरी पीरियड आप याद रखिएगा 2 years, विदाउट रीजनेबल कॉज, विदाउट द कंसेंट एंड अगेन द विश ऑफ द सच पार्टी, एंड इट इंक्लूड्स विलफुल नेगलेक्ट। It is all about the ground of desertion of for a divorce। इसके बाद जो ग्राउंड है वो आपसे पूछे नहीं जाते, आमतौर से इन्हीं दोनों पर सवाल होता है। दूसरा है कि व्हाट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का जो लैंग्वेज यूज हुई है, कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन, कन्वर्जन टू अदर रिलीजन। कन्वर्जन का मीनिंग ये नहीं है लीविंग द वंस रिलीजन, अपना धर्म छोड़ देना, ये नहीं है, बल्कि क्या है कन्वर्जन बाय कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, ये है ग्राउंड। कोई व्यक्ति एक धर्म है, उस धर्म को छोड़ देता है, एथीस्ट हो जाता है, इट इज नॉट ए कन्वर्जन। एक्ट ये कहता है कि कन्वर्टेड टू एनी अदर रिलीजन, यानी जो हिंदू धर्म डिफाइंड है हिंदू मैरिज एक्ट में, उन धर्मों के अलावा, उन सेक्स के अलावा किसी दूसरे धर्म को उसने एडॉप्ट कर लिया हो, तब ये होगा कि उसने कन्वर्ट कर लिया अदर रिलीजन में। दूसरा सवाल ये होता है कि क्या कन्वर्जन टू अदर रिलीजन से ऑटोमेटिक मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी और नॉट। इस पर बहुत क्लियर कहा गया है कि कन्वर्जन डज नॉट ऑटोमेटिकली अफेक्ट ए मैरिज टाई। और दूसरी बात कही गई है ओनली नॉन कन्वर्ट कैन सीक मैट्रिमोनियल रिलीफ ऑन दिस ग्राउंड। वो व्यक्ति जिसने धर्म नहीं छोड़ा है वही ग्राउंड ले सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ भी सेक्शन 23 आ जाता है बीच में, जो ये कहता है द पटिशनर कैन नॉट बी अलाउड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज और हर ओन रॉन्ग, कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही कृत्यों की, अपनी गलतियों का लाभ उठाने का नहीं दिया जाएगा। जो नॉन कन्वर्ट है उसी को ये ग्राउंड अवेलेबल है। और दूसरी बात, ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कन्वर्जन से नहीं होगा। देयर शुड बी ए पिटीशन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑन दिस वेरी ग्राउंड। एक और केस ला इसमें आया है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। उसमें अंडर सेक्शन 4 में कहा गया है द रिनंसिएशन ऑफ इस्लाम बाई ए मैरिड मुस्लिम वोमेन और हर कन्वर्जन टू ए फेथ अदर देन इस्लाम शैल नॉट बाई इटसेल्फ ऑपरेट टू डिसॉल्व हर मैरिज। यानी मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में ही प्रोविज़न किया गया है कि कन्वर्जन जो होता है या इस्लाम को छोड़ देना बाई ए मैरिड मुस्लिम वोमेन or her conversion to a faith other than Islam shall not itself operate to dissolve the marriage. A proviso has been added and clarified after such renunciation, यानी धर्म को छोड़ देना, और conversion, the woman shall still be entitled to obtain a decree for dissolution of her marriage on any of the grounds mentioned in section 2। यानी कन्वर्ट होने के बावजूद, डिनाउंसमेंट ऑफ द मैरिज के धर्म को डिनाउंस करने के बावजूद, यहाँ पर यह कहा गया है कि
सेक्शन 2 में जो ग्राउंड दिए गए हैं उस ग्राउंड पर डाइवोर्स की, तलाक की पिटीशन फाइल किया सकती है। ये है कन्वर्जन, जिस पर बहुत से केस लाभ इधर आए हैं। इसको आप अगर कन्वर्जन के बारे में नोट्स बनाएंगे इसमें जोड़ लीजिएगा। एक केस ला इसमें दिया है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये केस ला है हिंदू मैरिज सेक्शन 18(2), सेक्शन 18 सब क्लास 2 सब क्लास F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ए हिंदू वाइफ whose husband has ceased to be Hindu by converting to another religion has the right to stay separately from him and seek maintenance। यानी उसे एक ग्राउंड और है कि एक कन्वर्ट होने के बाद डाइवोर्स की पिटीशन न लाने के बावजूद वो सेपरेट लिविंग एंड मेंटेनेंस की पिटीशन ला सकती है। दैट इज प्रोवाइडेड अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन। इसके बाद आता है द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में क्या है, किस प्रकार का अनसाउंडनेस माइंड होना चाहिए? उसको देख लेते हैं। अनसाउंडनेस, पागलपन की नेचर क्या होना चाहिए? कहते हैं इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा अवैकित चित्त व्यक्ति या महिला जिसका इलाज नहीं हो सकता और हैज़ बीन सफरिंग कॉन्टिन्यूसली और इंटरमिनेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। यानी ये तो कॉन्टिन्यूस हो या बार बार बीच में उसे ये पागलपन के दौरे जैसे पड़ते हों, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता हो, और उसकी प्रकृति नेचर कैसा है, ऑफ सच ए काइंड एंड सच एन एक्सटेंट दैट petitioner कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। एक तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ये क्या है, इनक्यूरेबल है, और उस पर कहते हैं कि सफरिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूस एंड इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। और इसकी नेचर क्या है, द petitioner कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, याची से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो विपक्षी के साथ रहे। फिर इसमें मेंटल डिसऑर्डर को भी डिफाइन किया गया है, मेंटल इलनेस, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड, साइकोपैथिक डिसऑर्डर और एनी अदर डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी ऑफ माइंड, एंड इंक्लूडिंग शाइजोफ्रीनिया। शाइजोफ्रीनिया को डिफिनेशन अलग देख लीजिएगा। शाइजोफ्रीनिया ऐसी बीमारी है मानसिक। यहाँ पर साइकोपैथिक डिसऑर्डर को भी डिफाइन कर दिया गया है, यानी परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड which result in abnormally aggressive or serious irresponsible conduct। यानी ये जो साइकोपैथिक आदमी है सो मनोवैज्ञानिक तौर पर इस तरह से विकृत हो चुका है कि इसका जो कंडक्ट क्या हो गया है, एबनॉर्मल एग्रेसिव कंडक्ट है, सीरियस कंडक्ट है। ऐसा एग्रेसिव कंडक्ट है कि उसकी जान ले सकता है, दूसरे को इंजोर कर सकता है, क्षतिकारित कर सकता है उसके शरीर को, उसके स्वास्थ्य को। तो ये कहा जाएगा ये साइकोपैथिक डिसऑर्डर है। तो इसमें इतनी बातें शामिल की गई हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के जो हेडिंग दी है उसमें इतनी बीमारियां शामिल कर दी गई। इसके बाद है
लेप्रोसी एक ग्राउंड है, कैसी होनी चाहिए? विरुलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। इसके बाद है रिनाउंस द वर्ड बाय इंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। सन्यासी हो जाना, परिवार को त्याग कर देना, किसी आश्रम में जा कर के रहने लगना और उसका आशय हो कि आजीवन आश्रम में रहेगा या घर वापस नहीं आएगा, उसे कहते हैं रिनाउंसिंग द वर्ड। दिस इज द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। एक और बीच में रह गया है वेनरल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। ऐसी बीमारी जो क्षति जो कि कम्युनिकेट हो सकती हो, जो छुआछूत की बीमारियां हैं, जो फैल सकती दूसरों में, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड। और लास्ट ग्राउंड है कि द पर्सन द अपोजिट पार्टी हैज नॉट बीन हर्ड अलाइव बाय हिज रिलेटिव्स। यानी पिछले 7 वर्षों से उसके नातेदारों द्वारा उसके जीवित होने के बारे में कोई बात नहीं सुनी गई हो, या अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो नेचुरली उसके बारे में जानते हो, नहीं जो नियर रिलेशन है, जिनको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसके जो नियर रिलेशंस हैं या याची के द्वारा उसके जीवित होने के बारे में कोई सूचना ना उसे मिली हो और ये 7 वर्ष बीत गए हों, तो ये दरअसल लिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 108 से। इट इज़ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अगर इसको ये साबित कर ले जाते हैं पिटिशनर, तो दिस इज द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। ये दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड्स अवेलेबल टू आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज अंडर सेक्शन 13(1) हिंदू मैरिज एक्ट। इसके बाद 13(1)A देखेंगे, फिर 13(2) देखेंगे एंड फिर 13(1)B देखेंगे। इट इज ऑल अबाउट द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। थैंक यू।